A very warm and pleasant good evening, students. Today Tanya Rajput is going to deliver lecture on environment, ecology, and biodiversity. This is our part 2. Okay, students. So let's start. Ecosystem. A system formed by interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factors of the environment which they live, all linked by transfer of energy. This is NCERT definition. So let's understand what is meaning of it. इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ फिजिकल एंड केमिकल a system formed by interaction of all living organism with each other. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करके सिस्टम फॉर्म करते हैं एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स मतलब फिजिकल फैक्टर इन द सेंस जैसे काऊ ने ग्रास खाई, और केमिकल फैक्टर मतलब वो एनर्जी एक टाइप की उसमें आ गई. एनर्जी एक टाइप की उसमें आ गई का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए. Environment in which they live, all linked by transfer of energy. This is very important factor. All linked by transfer of energy. A system formed by interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy. So I think it is now clear to you. Next. Various population of living in a definite geographical region is called biotic community. Ecosystem or ecological system word was first coined by Tinsley. This is very important. Every ecosystem is made up of two components. Biotic component, biotic means living part, and abiotic components means non-living part. Types of ecosystem. A ecosystem can be as small as an oasis in a desert or as big as an ocean spanning thousands of miles. There are two types of ecosystem. So ecosystem can be small as an oasis. Oasis क्या होता है? A place in a desert where there is water and plants grow. Desert में वो एरिया जहाँ पे plants और water होती हैं, छोटा सा एरिया होता है वो, उसको हम बोलते हैं ओसिस. इकोसिस्टम इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है. जैसे ओशन इकोसिस्टम होता है, इतना बड़ा भी हो सकता है जो थाउजेंड ऑफ माइल्स के स्पैन में फैला होता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ऑन लैंड. और इक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स ओशंस, सीज. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल फर्दर. Terrestrial ecosystem are exclusively land-based ecosystem. There are different type of terrestrial ecosystem distributed around various geographical zones. They are as follows: forest ecosystem, grassland ecosystem, tundra ecosystem. Now we will study this in detail. Forest ecosystem. In a forest grassland ecosystem. In a grassland ecosystem, the vegetation is dominated by grasses and herbs. Temperate grassland, savanna grassland are some of the example of grassland ecosystem. So grassland ecosystem के example है temperate grassland and savanna grassland. A forest ecosystem consists of several plants, animals, and microorganisms that live in coordination with abiotic factors of the environment. Forests help in maintaining the temperature of the earth and are major carbon sink. फॉरेस्ट हेल्प करती हैं टेम्परेचर मेंटेन करने का अर्थ की, एंड आर मेजर कार्बन सिंक. कार्बन सिंक का मतलब है कार्बन सिंक इज एबिलिटी टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो फॉरेस्ट, ओशन और अदर नेचुरल इन्वायरमेंट जो एबिलिटी होती है उनमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को हम कार्बन सिंक बोलते हैं. ओके. Tundra ecosystem. Tundra ecosystem are divided of trees and found in cold climates or where rainfall is scarce. These are covered with snow or
For most of the year, the ecosystem in the Arctic और mountain tops is desert ecosystem. अब आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेजर्ट इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक कोल्ड होता है, एक हॉट होता है. इसमें हमने कोल्ड की बात की है. These are covered with snow for most of the year. The ecosystem in the Arctic or mountain tops is desert ecosystem. इसमें कोल्ड डेजर्ट की बात की है हमने. Desert are found throughout the world. These are regions with very little rainfall. The days are hot and the nights are cold. ये टुंड्रा टाइप की हमारी इकोसिस्टम है. ओके. Aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem are ecosystem present in a body of water. These can be further divided into two types, namely freshwater ecosystem, marine ecosystem. अब फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम क्या है वो पढ़ते हैं. फ्रेश वाटर. द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स. दीज हैव नो सॉल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद मैरीन इकोसिस्टम. जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट नहीं होता है, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स. मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है? मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड सीज एंड ओशंस. These have a more substantial salt content and greater biodiversity in comparison to the freshwater ecosystem. जो मेरीन इकोसिस्टम है वहाँ पे ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी. बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. फिशेस होंगी वो अलग अलग स्पीशीज़ की होंगी, मतलब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीशीज़ होंगे. एक टाइप की बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं मेरीन इकोसिस्टम. मेरीन इकोसिस्टम में पानी जो होता है वो सेलाइन होता है, मतलब नमकीन होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. दिस इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अवर इन्वायरमेंट. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment. जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है उसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं? बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. दिस इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अवर इन्वायरमेंट. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अवर इन्वायरमेंट, दिस इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अवर इन्वायरमेंट. और जो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे प्रिवेल कर रही है उसे हम इकोसिस्टम का वहाँ पे स्ट्रक्चर बता सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, नेमली बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स. The biotic and abiotic components are interrelated in an ecosystem. It is an open system where the energy and components can flow throughout the boundaries. अच्छा बेटा, ओपन सिस्टम की ओपन इकोसिस्टम और क्लोज इकोसिस्टम में आपको बता देती हूँ. ओपन इकोसिस्टम जहाँ वो होता है जहाँ पे एनर्जी और मैटर आपस में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, और ये सराउंडिंग है. जहाँ पे मैटर और एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं ओपन इकोसिस्टम. और स्टूडेंट, जहाँ पे सिर्फ मैटर ही एक्सचेंज, जहाँ पे सिर्फ एनर्जी ही एक्सचेंज होती है, नॉट मैटर, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोसिस्टम. और जो ह्यूमंस है ना, अच्छा मैं आपको बताती हूँ. यू टेक इन केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड एंड डू वर्क ऑन योर सराउंडिंग. ये एक टाइप की हमारी ओपन सिस्टम है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी आइसोलेटेड इकोसिस्टम भी. आइसोलेटेड सिस्टम भी बता देती हूँ मैं आपको. आइसोलेटेड होता है जहाँ पे ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है. मुझे पता ही कि आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि ये क्या होता है. मतलब जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटररिलेटेड इन एन इकोसिस्टम, इट इज़ एन ओपन सिस्टम. ये एक ओपन सिस्टम है, याद रखना, वेयर द एनर्जी एंड कंपोनेंट्स कैन फ्लो थ्रू आउट द बाउंड्रीज. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम. नेक्स्ट है हमारा फूड चेन.
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन, अब फूड चेन क्या होती है? जैसे बच्चों ग्रास है, ग्रास को गोट ने खा लिया और गोट को ह्यूमंस ने खा लिया। अब where grass is producer while goat and human are primary and secondary consumer, man is primary as well as secondary consumer। जो man है वो primary भी है और secondary consumer भी है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमरी जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, सेकेंडरी जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट हो जैसे फॉक्स, वुल्फ, पिकॉक, और टर्शरी जो सेकेंडरी पे डिपेंडेंट हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हो जैसे टाइगर, लायन, चीता एक्सेट्रा। ओके, द टर्म स्टीप is associated with bioregion grasslands. About 2% of the world land is tropical rainforest. This is very important. Two components of ecosystem are biotic and abiotic. The resources which are obtained by biosphere and have life is called biotic resources. बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष इज एसोसिएटेड विद इकोलॉजी who work on the East Kolkata wetland and its wise use. ओके, तो अब हम थोड़ा इकोसिस्टम का फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेंगे। जो इकोसिस्टम है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक है वो फर्दर है कार्बनिक सब्सटेंस, नॉन कार्बनिक सब्सटेंस, क्लाइमेटिक फैक्टर, कार्बनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन हो, नॉन कार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इसकी एग्जांपल्स हैं अबायोटिक फैक्टर्स की, जैसे वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। बायोटिक फैक्टर्स हैं वो फर्दर 3 में डिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हो जैसे फॉक्स, वुल्फ, पिकॉक, और टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हों जैसे हो गया लाइन, चीता, टाइगर, चीता एक्सेट्रा। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको हम प्राइमरी कार्निवोरस भी बोलते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं हम। तो इसके बाद हमने डिकम्पोजर्स पढ़ना है। डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था बट आई विल एक्सप्लेन इट नाउ to you also. These decomposes dead producers and consumers and changes them into physical elements. Decomposes वो होते हैं जो dead producers and consumers को physical elements में change करते हैं। Okay, तो I think it is now ecology is now clear to you. फिर भी हम एक important कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसको हम इको डे भी बोलते हैं और ये सेलिब्रेट होता है 5 जून को। ओके, आई थिंक नाउ ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं हमें कमेंट करके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।